Good morning, students. Welcome back to our computer video. Today we have further revision of chapter number 15 array. Yesterday we have done the 2 marks question. Hope you all understand how the integers are applied, how the length is applied in our elements, how the size is applied in our elements, how we find the length of our element. Hope you are all are understand. If anyone not understand the concept of the length, concept of the size of an element, length of the element, then please tell me what difficulty you will face. Okay. Now further to my question we have done. Now we start our program, that is chapter number 15 arrays. We know that first in our array there are the number of programs, like we have a single dimension array, we have a double dimension array, we have a matrices like 2 multiplied by 2, 3 multiplied by 3, 4 multiplied by 4. We have also matrices of 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, and we have also matrices of 3 multiplied by 1, 3 multiplied by 2, 3 multiplied by 3, 3 multiplied by 4, and further as it is 4 multiplied by 4, 4 multiplied by 1, 2, 3, 4. These all matrices are always denoted with the double dimension array. Denoted with double dimension array means we didn't use the single square bracket in 2D dimension. We have the size array in rows and column, means 2 multiplied by 2, m multiplied by n. We have rows and columns. We have the data in rows and columns. In we have, if we have given the data in rows and column, it means that we use double dimension square brackets. We for example, we have the program of 2 input and elements in and 2D array size m multiply by n, means फर्स्ट जो स्केयर ब्रैकेट होगी वो m के लिए यूज़ होगी, जो सेकंड स्केयर ब्रैकेट होगी वो हमारी किसके लिए यूज़ होगी, n के लिए. ऐसे अगर हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मैट्रिसेस दिया है तो फर्स्ट स्केयर ब्रैकेट हमें 2 के लिए यूज़ होगी, जो सेकंड स्केयर ब्रैकेट है वो किसके लिए यूज़ होगी, 3 के लिए. तो इट इज़ मैंडेटरी टू दैट when we input our program in a double dimension, so it is mandatory to write our bracket in a double dimension, like we use double square brackets in our programs. Now we start our revision, that is chapter number 15 array. Write down our question to input elements in an 2D array. 2D means double dimension. Size हमें दिया है m multiplied by n. M means row, n means columns, and print the sum of all the number row wise. इट मीन्स दैट हमने इसको रो वाइज प्रिंट करवाना है. हमें m मल्टीप्लाई बाय n दिया है. m मीन्स रो, n मीन्स कॉलम्स. डबल डिमेंशन मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैट्रिसेस. ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय में फर्स्ट रोज में हमने m प्रिंट करवाना है, सेकंड रोज में हमने n प्रिंट करवाना है. हरी अप सॉल्व करो इसको मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स. import, we start with the code our import function. When we use the import function in our program, it means that we use the scanner code. If we use the scanner code, it means that we use the input code, that is system.out.println, to find the output. Okay, first we start with the import java.util, then dot, then star, then semicolon. Again, name of the class name, array. When we start the class, it means that we use the curly bracket, then we use the code, that is scanner SC. क्या होता है कोड क्लास, टेल मी. स्कैनर SC, यस, वेरी गुड. न्यू स्कैनर system.in फंक्शन को कॉल की, देन लास्ट में कंटिन्यूसली प्रिंट हो रहा है तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, सेमीकॉलन. देन स्कैनर का कोड लगा है, इट मीन्स दैट
सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल क्लास एरे, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की है, देन उसके बाद हमने कोड लगाना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगेन हमने ब्रैकेट को क्या करना है स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट की, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इंट में हमें रोज की जरूरत पड़ेगी, वी नीड द रोज, वी नीड द कॉलम, I for row, J for column, M matrices, we have the matrices size M multiplied by M, N and S, because उन्होंने बोला है हमने इसको क्या करना है सम। तो इनपुट एलिमेंट्स इन एंड 2D एरे, हमने एलिमेंट्स इनपुट करवाने हैं डबल डिमेंशन एरे में, जिस उस डबल डिमेंशन एरे का साइज है m मल्टीप्लाई बाय n, एंड फिर उसको प्रिंट करवाना है, सम करवाना है उसके जितने भी नंबर्स उसको हमने सम करवाना है। इट मीन्स दैट वी नीड रोज, वी नीड कॉलम्स, वी नीड m size, we need n size and the sum. Always sum is equal to 0. If we in initialization in this data type integer, if we use the s is equal to 0, it is okay. Next int we have the using the code that is system.out.println, system.out.println. First we print फर्स्ट वी यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर द रोज। एक बार रोज करवाएंगे, रोज के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ये देखो मैंने बताया था ना आपको, एम इज रो एन इज कॉलम, तो ऐसे हमने कोड लगाना है। जल्दी जल्दी करो मेरे से पहले सभी बच्चे। नेक्स्ट इंट आई कैपिटल, नेक्स्ट सेमी कॉलन, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हमने रोज प्रिंट करवाए हैं, अब हमने क्या प्रिंट्स करवाने हैं, कॉलम्स, लास्ट में सेमी कॉलम्स। नेक्स्ट m इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर के लिए हमें एरे की जरूरत पड़ेगी। वी नो दैट दिस इज अ डबल डिमेंशन, डबल डिमेंशन मीन्स वी यूज द रो, वी यूज द कॉलम्स, कॉलम्स मीन्स वी यूज द डबल डिमेंशन एरे इज इक्वल टू न्यू इंट m n, we use the looping of for I is equal to 0, I less than m, I plus plus, again use the loop for I रोज के लिए 0 है, लेस देन m तक जाएंगे, j अगेन वी यूज 0, j लेस देन m मल्टीप्लाई बाय क्या मैट्रिसेस है n, तो कॉलम्स के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है n, j प्लस प्लस, देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर सेमी कॉलन, रोज एंड कॉलम, कॉलम का हम कोड यूज करेंगे अगेन, ठीक है, एरे आई जे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड, ब्रैकेट हमने स्टार्ट की, इधर 2 ब्रैकेट क्लोज करो, 4 की लूपिंग लगाओ। अगेन उन्होंने बोला है ना सम हमने करना है, इसको रो वाइज करना है, ठीक है, सम करना है रो वाइज, मीन्स हमें दोबारा फिर लूपिंग की जरूरत पड़ेगी, अगेन सेम लगाना है। सम को हम ऑलवेज क्या डिनोट करते हैं, सम इज इक्वल टू 0। अगर आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया देन नो नीड टू इनिशियलाइज अगेन, सम इज इक्वल टू 0, सिंपल वी यूज द लूपिंग ऑफ 4 इन रोज एंड कॉलम, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, again what is the formula of sum, sum is equal to sum plus array I and j ब्रैकेट क्लोज, देन लास्ट में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या प्रिंट करवा दिया है, दोनों को प्लस करके सम ऑफ रो आई प्लस 1 जंप कर रहा है, किस पे जंप करेगा, सम पे, देन वी क्लोज द 3 ब्रैकेट्स। आपने ऐसे क्लोज नहीं करनी, 1 लाइन में आपने क्लोज करनी है, तो वी यूज फुल कोड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। दिस इज आवर प्रोग्राम,
योर होमवर्क क्वेश्चन, राइट जावा टू स्टोर द नंबर। इसी के बेस पे है, ऐसे ही सेम आपका बनेगा प्रोग्राम, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन, राइट प्रोग्राम इन जावा टू स्टोर number in a 4 multiplied by 4 2D dimensional array and display the matrix. Write a program in Java to store the number 4 multiplied by 4 2D dimension array and display the matrices। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन सेम आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपने मैट्रिसेस 2D डिमेंशन के लिए मैट्रिसेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 रोज 4 कॉलम्स भी क्या है 4, ठीक है। मैट्रिसेस को आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, to input 10 numbers in an array and number to search and print whether the number is present, the number is present in the array or not, or not, use linear search technique We have to input the number in an array and a number to search and print whether the number is present in the array or not, use a linear search technique. So very important, the linear search technique we use. First we have, hurry up, solve this question. First we use the import java dot function, then class name, then we have a single dimension array. So we use int array in single dimension is equal to new int। array size क्या है हमारे पास, the input a function search 10, ओके। उन्होंने बोला था हमें 10 नंबर्स इनपुट करवाने हैं एरे में और उसमें नंबर हमने सर्च करना है एंड प्रिंट करना है। वो हमने चेक करना है कि वो नंबर प्रेजेंट है एरे में कि नहीं है। उसको हमने लीनियर सर्च टेक्निक के साथ करना है, ठीक है। बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च टेक्निक के साथ करना है। तो लीनियर सर्च में हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। सिंगल डिमेंशन है, सिंगल डिमेंशन वी यूज़ द सिंगल ब्रैकेट न्यू इंट में एरे का साइज हमें कितना बोला गया है 10। तो सिंपल वी हैव 10। इंट में हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, नंबर ओनली रोज। अगर ये हमारे पास यहाँ सिंगल डिमेंशन हमें ओनली आई की जरूरत पड़ेगी रोज की। इफ़ यू हैव द डबल डिमेंशन वी यूज़ द रोज एज वेल एज कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नंबर प्रेजेंट, we check the number is present in our array or not. So we use the -1 value again. We use the looping of 4 I is equal to 0, size of 10 less than 10, not use the is equal to the sign, then I plus plus, then we start our bracket, then system dot out dot print enter number, array I is equal to sc dot next end, system dot out dot print enter the number to search, number को search करेंगे, n is equal to sc dot next end। then we have a example reference from book page number 347, array s is equal to next end, system dot out dot print enter the number same as number। if 4 I is equal to 0 less than I plus plus, if array I is equal to अगर नंबर के इक्वल होगा तो जो हमारी प्रेजेंट एरे है वो आई के इक्वल होगी, बिकॉज वी हैव जस्ट ओनली यूज ओनली रोज। तो एरे जो हमने फाइंड करना है वो रोज के इक्वल हो गया, देन वी यूज द ब्रेक।
अगर वो -1 के इक्वल नहीं है, p नॉट इक्वल टू -1, देन फाउंड इन इंडेक्स p, एल्स फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स. System dot out dot println n plus not found. Write down on your classwork notebook whole program. I reference on the notebook. We use import function. When we use the import, it means that we use also scanner SC code. When we use the scanner SC code, it means that we use the data type in our array program. Always we use the integer data type because all the programs are done with the numbers. That means we use the integer data type. Int, we use number I p minus 1. P minus 1 because we search an element. It is a present or not in our matrices. That's why linear search है ना, तो it means that we search our element. Next, area is equal to sc dot next int system dot out dot print reference from book page number 347. Binary search technique. Write down our program to input a number to search and print whether the number is present in the array or not. Before we done our program in a linear search, now we done our program in binary search. Same program to input a number to search and print whether the number is present in our array or not. Same question before we have done in linear search, now we have done in a binary search. You don't have any confusion how the programs are made in linear or how the makes in binary. Simply when we make our program in linear search, it means that we input our value in integer, like we have the values of int n numbers. How many numbers are given? So we have a numbers given in 10, so simply we denote. But in our binary search technique, we input one by one are integers. For example, we use the function of import java.util, again class name, again public static void means scanner s is equal to new scanner. So binary search, what we do in binary search, single dimension. So our question is to input a number to search and print whether the number is present in the array or not. Simply we find the number input, सर्च करना है हमने कि वो नंबर हमारे प्रेजेंट है कि नहीं है. तो हमने सर्च करना है, तो रैंडम नंबर मैंने प्रिंट कर दिया. फॉर एग्जांपल 5 7 9 11 15 20 30 45 89 एंड 97. नंबर्स देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स इंटीजर में हमने इनपुट करवा दिए बिकॉज उन्होंने बोला था चेक करोगे हमारे नंबर्स प्रेजेंट है कि नहीं है. नेक्स्ट हमें इनिशियलाइज करवा देना है. ठीक है, मिनिमम नंबर इंट में इनिशियलाइज करवाओ डाटा टाइप में. मिनिमम नंबर 0, मैक्सिमम नंबर 0, मैक्सिमम ए डॉट लेंथ फाइंड करनी इसकी हमने लेंथ -1, मिड टर्म मिड इज इक्वल टू -1, पोजीशन इज इक्वल टू -1. ओके, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट टू सर्च. हमने एलिमेंट को सर्च करना है. ठीक है, एलिमेंट सर्च करेंगे तो उसके लिए हमें ESV भी जरूरत पड़ेगी. तो हमें ESV इनिशियलाइज करवाना है. इट मीन्स दैट ES इज इक्वल टू इंट में सिंपल ES इनिशियलाइज करवा दो. ES, द फॉर्मूला ऑफ ES, while मिनिमम नंबर लेस देन इज इक्वल टू मैक्स. अगर नंबर छोटा है और नंबर इक्वल है मैक्सिमम नंबर से, तो हम ये कौन सा कर रहे हैं, बाइनरी सर्च. तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वी हैव द फॉर्मूला ऑफ मिड टर्म. मिड टर्म मीन्स मिनिमम नंबर प्लस मैक्सिमम नंबर डिवाइडेड विद 2. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इफ
if element search equals to mid term, then पोजीशन में क्या आ जाएगा, हम इसको फाइंड करेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू दोनों को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ। जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास पोजीशन कौन सी फाइंड हो जाती है, मिड टर्म की। ठीक है, पोजीशन कौन सी फाइंड हो जाएगी, मिड टर्म की। देन वी यूज़ ब्रेक, ब्रेक के बाद एल्स इफ का यूज़ करेंगे अगेन। एल्स इफ अगेन हम चेक करेंगे, अगर एलिमेंट सर्च लेस देन मिड टर्म के है तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास कौन सा होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड माइनस वन, लेंथ माइनस वन का फॉर्मूला। इफ एल्स मीन्स एल्स, ऐसे मिनिमम वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, मिड प्लस वन, वी हैव अ सेमी कॉलन। इट मीन्स दैट इफ पोजीशन लेस देन इज इक्वल टू माइनस वन, if position less than is equal to minus 1, then system dot out dot print ln, इसके आगे सॉल्व करो। नेक्स्ट सॉल्व करो क्लास। अगर पोजीशन हमारी नॉट इक्वल टू माइनस वन के इक्वल होगी तो क्या फाइंड करेंगे हम, इफ पोजीशन नॉट इक्वल टू माइनस वन होगी तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या फाइंड करेंगे हम, सर्च प्लस फाउंड एट इंडेक्स प्लस मिड टर्म सेमी कॉलन, एल्स उसके बाद आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या कर देना है, सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। जितनी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की है लास्ट में देखो उतनी ब्रैकेट्स आपने क्लोज कर देनी। First we have done linear search, second we have done binary search. Now the very important question, that is question number 3. Use bubble sort, bubble sorting technique to input 10 numbers, means हमें कितने नंबर्स दिए हैं पहले देख लिया करो, 10 numbers and sort the number in ascending order. सिंपल बबल सॉर्ट टेक्निक में हम क्या करते हैं, बबल सॉर्ट टेक्निक में हम एक बार सिंपल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जैसे 0 से लेके हमने नंबर फाइंड करने हैं, इसमें एलिमेंट को फाइंड करना है। 10th टर्म कौन सी होगी, अगर 0 से हम फाइंड करेंगे तो 9th टर्म जो हमारी होगी, मतलब 9th नंबर जो हमारा होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे वो हमारा 10th एलिमेंट होगा। इट मीन्स दैट हमने जो 4 की लूपिंग स्टार्ट करनी है, इज इक्वल टू 0 i लेस देन 9 i प्लस प्लस स्टार्ट करो। सबसे पहले हमने 0 से लेके 10 तक इनिशियलाइज करवाने हैं नंबर, इसमें वही आपने फाइंड करना है। जितने भी आपको बबल सॉर्ट वाले असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे तो ये कोड अपने दिमाग में रखो, हमें यही कोड लगाना है, इफ एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस वन, अगर एरे का जो कॉलम है वो ग्रेटर है, ठीक है, कॉलम में जो वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू लार्जर। ओके, तो स्मॉलर टू लार्जर जाने के लिए हमें प्लस वन करना पड़ेगा। तो टेम्परेरी नंबर जो है हमारा वो एरे के जे के इक्वल होगा। अगर अगेन हम एरे के जे की वैल्यू, सबसे पहले आपने एरे को जे को ग्रेटर करना है, जे प्लस वन, उसके बाद हमने इसको क्या करके देखना है, इक्वल जे प्लस वन। अगर एरे जे प्लस वन के इक्वल, इट मीन्स दैट ये किसके इक्वल होगा, टेम्परेरी नंबर के इक्वल। ये चीज़ बस दिमाग में रख लो अपने, जितने भी बबल सॉर्ट वाले प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है।
इफ एरे जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू एरे जे प्लस वन, इट मीन दैट टेम्पररी नंबर जो होगा वो एरे जे के इक्वल होगा। एरे जे इज इक्वल टू एरे जे प्लस वन, एरे जे प्लस वन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टेम्पररी नंबर के इक्वल। ऐसे ही हमारे पास फोर की लूपिंग लगेगी अगर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन टेन, आई प्लस प्लस। पहले हमने 10 एलिमेंट सर्च करने हैं, ज़ीरो से लेके हम अगर 10 तक जाएंगे तो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने हो जाने हैं, 11। अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो वाला जो होगा वो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन, तो एलिमेंट्स जो होंगे टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 11। इसलिए हमें इसको 10 करने के लिए फोर के लोगों में हम क्या करते थे, आई लेस देन नाइन, आई प्लस प्लस। आई लेस देन नाइन क्यों लगाया, क्योंकि हमने जे लेस देन इज इक्वल टू नाइन माइनस लेंथ माइनस वन का फॉर्मूला यूज़ किया था इसलिए। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करना है अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे। तो सॉल्व करने के बाद आप मुझे देना, आपका होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है आपके, ये पहले ध्यान से देख लो। पहले हमने जे को आई जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू आई जे प्लस वन के इक्वल करना है। ये अगर आप कर लोगे ना, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये जैसे मर्जी करके इस प्रोग्राम को डन करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन सिंपली टेल मी ऑन माय पर्सनल नंबर। लेकिन जितने भी आपको बबल सॉर्ट वाले आ रहे हैं उसमें यही है कि फोर की लूपिंग लेंथ माइनस वन का फॉर्मूला लगाएं। अब आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चंस है वो देखो। Write a program to input 10 integer in an array, enter a number and search in the list using linear search technique. If the number found in print, search successful, otherwise print unsuccess. Next question, write a program, ये मैंने आपको दे दिया हुआ है, write a program in Java to store the numbers in a square matrices in a GDA double dimension array. फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल एंड द प्रोडक्ट ऑफ राइट डायगोनल। मतलब जो हमने प्लस करना है वो लेफ्ट डायगोनल का करना है। तो जो हमने लेफ्ट डायगोनल मीन्स कोई भी अपना डायगोनल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उन्होंने बोला है हमने सम करना है लेफ्ट डायगोनल का। लेफ्ट वाली साइड से हमारा लेफ्ट डायगोनल स्टार्ट हो जाता है, इसको हमने प्लस करना है, 1 + 5 + 9 जो इसका सम आ रहा है वो आपका लेफ्ट डायगोनल का सम होगा। प्रोडक्ट ऑफ राइट डायगोनल मीन्स राइट साइड से जो हमारी मैट्रिसेस की सीरीज बन रही है, 3 + 5 + 7, प्रोडक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ रहा है वो आपने बताना है। उसके बाद आपने ओरिजिनल मैट्रिसेस बनानी है जो भी बनती है, ठीक है। लेफ्ट डायगोनल को आपने प्लस करना है, राइट डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने आपको कल दिया था, जिन्होंने नहीं किया आज फिर से देख लो, ये मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना।